लोगों को लगता है कि जिम इज़ फॉर वेट लॉस. आई वुड से जिम इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, इट्स फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. Is it true that crash diets are really harmful for our health? अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा खा के भी बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं. अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैव ऑल्सो लॉस्ट अराउंड 50 kgs ऑफ माई वेट. इट कैन टेक 6 months to an year और मे बी 2 years, बट देन अगर आपने डिटर्मिनेशन ये बनाया हुआ है कि मुझे करना है, देन यू बी एबल टू डू. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने फॉलो करी है अपने वेट लॉस जर्नी में, वो ये कि मैंने बाहर का खाना कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था. Do you suggest, like, for the extreme cases, one should use Ozempic or any weight loss drugs? अगर आपका काम ऐसा है कि बिल्कुल भी आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सो आई वुड से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. If we talk about weight loss, तो जो women's में weight loss होता है और जो men में होता है, वो दोनों काफ़ी different हैं. जल्दी gain करती है, उनमें hormonal changes होते हैं, there are a lot of things. तो she highlighted this very important point जो काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता था. हेलो, वेलकम टू आवर शो. प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वेट लॉस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट couple of times. There's always a curiosity whenever there's a new trend in the market, especially after seeing so many drastic transformations of celebrities like Ram Kapoor and Bharti Singh, which has left everyone wondering that what is the secret sauce behind their weight loss journey. Well, to talk about it and to know about it more, we have an expert with us today, Dr. Shikha Singh. Hi, Dr. Shikha. Welcome back again. How are you today? I'm good, thank you, Roshni. How are you? I'm great. So, Dr. Shikha, as you're all seeing on the news, the drastic transformation of Ram Kapoor, which everyone is talking about. But as an expert, according to you, what do you think? What is the reason behind this weight loss? Like, how he achieved it? So basically, first of all, it's a big inspiration for like all of us. He's lost around 55 kgs, and that's a drastic weight loss. And being a celebrity, a lot of people get inspired from him. It takes a lot of consistency and a lot of determination to lose that much of weight. And he's actually worked on his diet, he's worked on his lifestyle, and he's been really consistent. So losing that much weight needs a lot of changes in the diet. For example, leaving junk food completely and making workout, exercise or physical activity a part of your daily routine. You need to be really consistent. And then there should be a lot of determination that you have to achieve your goal. And साथ ही साथ में you need a very strong mental support. That can be family or that can be a professional help. Yeah, like he said, a lot of people are questioning him ki artificial hai, but he explained that it was completely natural weight loss journey. But how is it different that it took quite a time for him to lose weight, and there are some people who just lose 20 to 25 or 30 to 35 kgs weight within 1 year time span. So why is that difference कि किसी को इतना टाइम लग रहा है वेट लॉस करने में, whether if you see another case उनको 1 ही साल लग रहा है, जैसे आपको भी 1 ही साल लगा था to lose 50 kgs. तो what is the science or what is the logic behind that? So basically, weight अगर आपको lose करना है तो can be done in 2 ways. हेल्दी तरीके से भी कर सकते हो, आप अनहेल्दी तरीके से भी कर सकते हो. अगर आप बहुत ज़्यादा क्विक वेट लॉस करते हो और बिल्कुल ही अपनी डाइट से सब चीज़ें हटा देते हो, तो ऑफ कोर्स वेट लॉस हो जाएगा, बट दैट कैन कम बैक. क्योंकि आप व्हेन यू विल बी बैक टू द नॉर्मल डाइट, जो आपके घर में चीज़ें खाई जा रही हैं, जो बन रही हैं, यू विल गेन ऑल योर वेट बैक अगेन. और वहीं अगर आप अपने डाइट में हर चीज़ इंक्लूड करते हो और प्रॉपर तरीके से आप अपना वेट लॉस करते हो, तो दैट वुडंट कम बैक. और वो उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट देन दैट वेट विल बी स्टेबल. वो दैट वोंट कम बैक. उसको मेंटेन करना ईजी होगा. So, is it true that crash diets are really harmful for our health? या अगर हम इसे एक proportion में करें तो it can be beneficial? एब्सोल्युटली. बहुत सारे लोग डाइट का मतलब ये समझते हैं कि सब कुछ बंद कर दो. यू जस्ट हैव टू पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं खाना है. लिक्विड डाइट्स हैं और जूस फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. व्हाट आई बिलीव इज
you should be including everything in your diet. Even to my clients and to my followers, मैं जो भी diets देती हूँ, I include everything: roti, sabzi, dal, rice, fruits, nuts, everything. And you can even have paratha, but you need to know that how much you have to eat and how you have to cook it, so that these things will make you lose weight. और यही चीज़ें आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो. But Dr. Shikhar, there's this problem that everyone faces during their weight loss journey is they're having cravings, you know, especially now when there's shadi season going on. So it's hard, it's really, really hard to resist, you know, when everything is just in front of you, the delicious food. So how one can, you know, manage weight loss during these times and enjoy also on their weight loss journey? Right. So cravings are real, and you know, अगर मैं ये बोलूँ कि you know, I've also lost around 50 kgs of my weight. अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे cravings नहीं होती, तो that will be a big lie. Yeah. Of course, I also have cravings and I also indulge in, you know, outside food at times. But then शादी सीजन में you have to be really mindful. आप enjoy भी कर सकते हो, और साथ के साथ आप अपना weight भी maintain कर सकते हो. I'll give you few tips जिसको you know consider करके, use करके, even during the festive season or wedding season, you can beautifully maintain your weight. First of all, आप कभी अगर आपको किसी wedding में जाना है, so make sure कि आप अपना meal खाकर घर से और फिर जाएं, so that you know you are full. और वहाँ पे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत भूख लगी and you just overindulge into things. So make sure you're having a full meal, healthy meal with high protein and good fat. वो आप खाकर जाइए. And शादी में भी you need to plan कि you know you need to make a decision कि मुझे एक dessert खाना है या 2 dessert खाने हैं, और मुझे 80% healthy चीज़ें खानी हैं, 20% I can indulge. So start with a small plate. एंड आप उसमें कोशिश करो कि एक ही सर्व लें, बार बार आप सर्व ना लो. एंड स्टार्ट विद हेल्दी थिंग्स, लाइक देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप ग्रिल्ड चीज़ें ले सकते हो. स्टार्ट विद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. और उसके बाद डेफिनेटली आप डिज़र्ट में भी इंडल्ज कर सकते हो. आई वुड से शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो कोशिश करो कि आप किसी के साथ शेयर करके डिज़र्ट खाओ. एंड व्हेन यू गोइंग टू अ वेडिंग, डोंट फोकस ऑन फूड ओनली. Focus on other things also. Dance, have a gala time, enjoy with your friends, photo sessions karo, and just stay active. Have a lot of water and things like that. Also, अगर हम इसको एक उल्टी सिचुएशन करके देखें, so there are a lot of you know brides or people जिनके घर में शादी है and they're losing weight for that special day, but इतना hectic हो जाता है during that period that you know they're stressed and everything is there around, so they start eating. तो ऐसा होता है कि उन्होंने इतना सारा लूज़ करा but एंड में आते आते they've gained weight. So how to overcome that? So basically, you know, that's what I said कि अगर आप अपनी डाइट ऐसे रखोगे कि आप घर की ही चीज़ें खा रहे हो, you just have to focus on the portion and you have to focus on how you cook it. तो ऐसा नहीं होगा कि suddenly आप weight gain कर लोगे. It won't happen. आप अगर घर की चीज़ें खा रहे हो, healthy बना रहे हो, और आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खा रहे हो, तो इन दी एंड ऑल्सो आप उसी चीज़ को मेंटेन करके रख सकते हो, क्योंकि वही सब चीज़ें आप खाओगे. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि स्ट्रेस और ईटिंग को कभी भी मिक्स नहीं करना है. आप दोनों चीज़ों को हमेशा सेपरेट रखो. कोशिश करिए कि आपकी नींद पूरी हो. ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर शादी का घर है और शादी है आपके घर में, आपकी शादी है, तो इट बिकम्स रियली हेक्टिक. आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो और सारे यू नो फेस्टिविटीज़ और सब चीज़ें सेलिब्रेट हो रही हैं, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. बट कोशिश करिए कि आपके पानी का इंटेक पूरा हो. पुट रिमाइंडर्स फॉर वाटर सो दैट आपका पानी का इंटेक पूरा हो. कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप अपनी पूरी कर सकें. एंड ट्राई टू ईट होम कुक फूड एज मच एज पॉसिबल. अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो फॉर शॉपिंग एंड ऑल, तो आप कोशिश करो कि घर से ही पैक करके चीज़ें आप लेकर जाओ. इट कैन बी एनी थिंग बट इट शुड बी होम कुक्ड. So by these through these tips, one can easily enjoy their foods and go for weight loss. Absolutely. Right. But also there's this new trend, castor oil patch. You know, I just came through that one uses castor oil patch and places on their tummy, and it helps in bloating and you know it helps in digestion. So how true is that? So castor oil, of course, you know, it aids in digestion and could be a little beneficial. But then if you really want to have a good digestion, you have to have a overall, you know,
you need to overall balance the things. If you want to have a good digestion, water is a very very important thing to include. आपको पानी you have to really take care. बहुत सारे लोग they are throughout the day they are busy and they just forget to have water. So आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, so you wouldn't have to डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स. अगर आप सिर्फ अपने पानी का इंटेक पूरा करते हैं और अपने लंच और डिनर के साथ खूब सारा सैलड खाते हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा. देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो आपका डाइजेशन ख़राब कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नॉट स्लीपिंग इनफ, इफ़ यू टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस, or if you're having too much of processed food. So just work on these things first, and then I think you wouldn't be relying on the other things. Also, doctor, there are a lot of this question is from a lot of people. They think ki, during the diet, if they have enrolled with some certain kind of diet challenge, so they're not able to stick to the times. So if they are not doing that, though, will it decrease the scale of weight loss journey? Yeah, it is fine that they are eating a little late, or they are not able to match with the timings as given by their nutritionist, which is a very common problem. Yes. So body ki ek, there's a body clock called as a circadian rhythm. So basically, if we work along with that circadian rhythm, our body functions the best. And when our body is functioning the best, it will lose weight fast. And of course that matters. अगर आपका काम ऐसा है कि बिल्कुल भी आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, so I would say something is better than nothing. So you should try doing other things, है ना. बाकी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो. Try eating healthy, try not to have outside food, have sufficient water, sleep and salad in your diet. Try to focus on timings. Of course that will fasten your weight loss, or that will also help you maintaining a good health. And especially I always insist on dinner timings. अगर dinner आपका जल्दी होगा, that helps you lose weight faster. And also it takes our body to digest the food properly. तो अगर आप खाते ही immediately if you go to bed, तो that will also make you bloated, you will feel heavy, आपकी नींद भी properly पूरी नहीं होगी. So make sure कि आपके dinner और आपके bed time के बीच में at least 3 hours का gap होना चाहिए. That is must. Also, Dr. Shikhar, like you also lost around 50 kgs. So any tips you want to give from your own personal journey? Yes, of course. कुछ भी करने से पहले अगर आपको 50 kg weight loss करना है, and if you are at that point, आपका mental health बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए. You have to be mentally very very strong. I mean mentally you have to be very strong. Determination होना चाहिए. और बहुत सारे उस टाइम पे यू आर वेरी वीक मेंटली, क्योंकि बहुत सारे आपको कमेंट्स मिलते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट टारगेट ऑन योर वेट. तो उस वक्त पे आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग एंड इफ़ यू डिटर्मिन्ड कि मुझे करना है, then nothing can stop you. It can take 6 months to an year or maybe 2 years, but then अगर आपने determination ये बनाया हुआ है कि मुझे करना है, then you'll be able to do. और सबसे important जो चीज़ मैंने follow करी है अपने weight loss journey में, वो ये कि मैंने बाहर का खाना completely stop कर दिया था. और घर में ही I love cooking and I used to make tasty food for myself and with less oil, and I used to experiment so much and try preparing things at home, and I used to have them in small portion. So that helped me a lot. तो अगर आप sugar अपने diet में completely बंद कर दो और बाहर का खाना completely बंद कर दें and packaged food, that will really help you a lot. Yeah, which is also very difficult. Yeah, it is difficult. Takes a lot of determination to do that, yes. I'm sure. Also, we've seen clips of Tanisha Mukherjee and a lot of celebrities losing weight, inspiring us. And around that, the news that, one can lose without going to gym. So what does it say about that? Do you think it's true? So basically, a lot of people think कि if you don't have access to gym or if you don't have time to go to gym, weight loss कर ही नहीं सकते. It's not like that. I would say 80% of the role in your weight loss and in maintaining your health is played by your diet. तो आप अगर अपनी diet ठीक कर लो, तो even if you don't have time to go to the gym or if you don't have access to the gym, you can still lose weight. तो diet is that diet should be the priority.
और जिम जाकर अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो तो हार्डली आप 300-400 कैलोरीज बर्न कर लोगे। अगर आप अपनी डाइट में वो 400 कैलोरीज सेव कर लें तो आप जिम भी नहीं गए और आपने वेट लॉस भी कर लिया। बट देन ऑफ कोर्स आई वांट टू ऐड हियर कि एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो अगर आप अपने पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट्स टू एन आवर कोई एक फिजिकल एक्टिविटी रखते हो तो दैट विल रियली हेल्प यू टू स्टे फिट। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हाँ, वेट लॉस उसके बिना भी हो सकता है। That includes walking? Or Yeah, no? walking. I always say कि walking is the best thing I mean anyone can do, क्योंकि उसके लिए कोई आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ कहीं जाना नहीं, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। आप कहीं पे भी वॉक कर सकते हो, किसी भी टाइम पर कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी ऑल्सो आई डिड अ लॉट ऑफ वॉकिंग। आई यूज टू वॉक फॉर 45 minutes an hour every day and that After helped every me. meal? No, in a day Oh, आप total. 45 minutes to an hour अगर वॉक करते हो, 30 minutes मॉर्निंग, 30 minutes इवनिंग, या एट अ गो आप 1 hour वॉक करते हो, दैट हेल्प्स अ लॉट। Oh, that's really nice. Also, doctor, there's been news around Ozempic that's quite helping, and there are side effects also. But you know, we've seen news around celebrities like Karan Johar, which she denied, but there were a lot of rumors around it. So, do you suggest, like, for the extreme cases, one should use Ozempic or any weight loss drugs? सो यू नो आई वुड लाइक टू से कि बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल अगर कुछ है तो वो है बीइंग ओवरवेट। बॉडी फैट, अगर आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा हार्मफुल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ओजेम्पिक यूज़ भी कर रहे हो फॉर वेट लॉस, इट्स ओके। आई मीन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू अदर थिंग्स एंड इफ़ यू फील कि कुछ नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, using Ozempic is okay, you can still use it. But basically Ozempic का main purpose है, it is used in diabetes type 2 diabetes patients, और वो आपके blood sugar levels को नीचे लेकर आता है। But then हाँ, उससे weight loss भी होता है। तो अंडर अ प्रॉपर सुपरविजन और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप Ozempic ले सकते हैं फॉर वेट लॉस ऑल्सो। उसके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर उसको लिया जाए तो वो आपके पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर को भी अफेक्ट, किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है। बट देन इफ़ यू टेकिंग इट अंडर प्रॉपर सुपरविजन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले रहे हो, तो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर योर बॉडी। तो आप वेट लॉस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। बट देन अगर आप उसको एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ आप उसको यूज़ करते हो तो दैट विल वर्क वेरी वेल फॉर योर बॉडी। Right, Dr. Shikha. So, doctor, as an expert, what do you suggest which is better, the keto diet or intermittent fasting? So basically keto diet was actually invented for epilepsy patients and ये एक पर्टिकुलर डाइट है जिसमें यू नो द कार्ब्स आर रिड्यूस्ड बहुत ज़्यादा एंड जिसके अंदर हाई फैट एंड मॉडरेट प्रोटीन हम यूज़ करते हैं। काफ़ी ड्रेन्ड आउट फील करवाती है इनिशियली आप क्योंकि बॉडी का जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो कार्ब्स होता है और कार्ब्स से ही बॉडी एनर्जी बनाता है। तो जब हम कार्ब्स रिड्यूस करते हैं तो इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है, यू फील रियली लेथार्जिक एंड ऑल। बट ग्रेजुअली जब कीटो डाइट फॉलो करी जाती है व्हेन यू आर ऑन मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फैट, तो बॉडी फैट को यूज़ करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड गोज इनटू कीटोसिस। सो बेसिकली फैट को बर्न करके कीटोन बॉडीज़ बनाती है और जब बॉडी कीटोसिस में जाती है तो उस वक्त पे यू फील रियली फुल, आपको भूख नहीं लगती, आपको भूख लगनी कम हो जाती है एंड यू स्टार्ट टू फील रियली एनर्जेटिक आफ्टर फ्यू डेज। So it works really well, but then again I would like to add here that you should be doing all these things under proper supervision. Yeah, because when you go back to your normal lifestyle, one day you would. Yes. Then I think maybe you will gain weight again. Yes. Right. देखिए बहुत सारे लोगों में ना इतना डिटर्मिनेशन नहीं होता कि हम अगर लोग बहुत ओवरवेट हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 kg ओवरवेट है, 60 kg ओवरवेट हैं, सबके अंदर इतना डिटर्मिनेशन नहीं होता कि वो इतने पेशेंट रहें और पूरा टाइम दे के वो अपना वेट लॉस करें। बहुत बार उनके साथ ये होता है कि वो स्टार्ट करते हैं देन दे ब्रेक देयर डाइट, दे अगेन स्टार्ट हैविंग आउटसाइड फूड।
तो अगर उनके लिए कीटो डाइट वर्क करती है देन इट इज़ ओके। जैसे मैंने कहा कि बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल अगर कुछ है तो हाई फैट परसेंटेज है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपना वेट लॉस करते हैं एंड उसके बाद आप उसको अच्छे से मेंटेन कर लेते हो, सो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। ऑफ कोर्स कीटो डाइट रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग है, उसमें जो हम नॉर्मली घर में खाते हैं बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं इंडियन डाइट की बात करूँ तो कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड इफ़ यूर अ वेजिटेरियन तो मेन बल्क जो है खाने का वो कार्ब्स से ही आता है। रोटी है, राइस है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। इवन दाल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन नहीं होता। तो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा लैक करता है इंडियन डाइट में, और कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसको हटा देते हैं तो नेचुरली हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा वी फील वेरी डिप्राइव्ड एंड वी फील रियली अनकम्फर्टेबल। बट इफ़ दैट मेक्स यू लूज वेट, of course you can go for it, and after that gradually आप अपने मेंटेनेंस डाइट पर आओ। एकदम से अगर आप जंप कर जाएंगे अपने नॉर्मल रूटीन पर तो डेफिनेटली वेट बाउंस बैक करेगा। सो यू शुड बी रियली रियली ग्रेजुअल। That's true. So whenever someone imagines weight loss, they are for like abs होने चाहिए, biceps होने चाहिए, you should have a lean body. But is abs really healthy? सो सोशल मीडिया पे आप जो सब चीज़ें देखते हो वो सब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑल ट्रू। कैन बी फैब्रिकेटेड, कैन बी एडिटेड। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप यू शुडंट बी गोइंग बाय किसी और को देखकर, कि किसी और को अपना इंस्पिरेशन बनाकर कि इसने 6 पैक एब्स बनाए हुए हैं तो हमें भी बिल्कुल ऐसी ही फिटनेस चाहिए। और 6 पैक एब्स कोई क्राइटेरिया नहीं है फिटनेस का। बिना 6 पैक एब्स के भी आप यू कैन बी फिट। तो डेफिनेटली अगर आपको 6 पैक एब्स चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी रियली स्ट्रिक्ट अबाउट योर डाइट। फैट परसेंटेज बॉडी का बहुत कम होना पड़ेगा तब जाके दो एब्स विल बी विजिबल। सो अगर मैं नॉर्मल फैट परसेंटेज की बात करूँ तो फॉर मेल्स इट्स लाइक 10 to 20% ऑफ बॉडी फैट शुड बी देयर, हेल्दी फैट। और अगर फीमेल्स की बात करूँ तो 20 to 30% बॉडी फैट होना चाहिए। अगर आपको एब्स चाहिए तो फैट परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे जानी चाहिए एंड यू शुड बी रियली डूइंग वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, तब जाके आपके 6 पैक एब्स आते हैं। बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया फॉर बीइंग हेल्दी। आपको अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। यू शुड बी, एज आई सेड, यू शुड बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट। ओनली देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर डाइट एंड अदर थिंग्स। तो कोशिश करो कि अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करें एंड योर डाइट शुड बी वेरी हेल्दी। यू शुड फील गुड फ्रॉम इनसाइड, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Also, Dr. recently, the Bollywood celeb Tanisha Mukherjee, she highlighted very important issue that if we talk about weight loss, तो जो women's में weight loss होता है और जो men में होता है वो दोनों काफ़ी different हैं। जल्दी gain करती हैं, उनमें hormonal changes होते हैं, there are a lot of things. तो she highlighted this very important point जो काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता था. So what are your views on this? So basically yes, she's right. As I just mentioned कि body fat भी अगर हम देखें तो healthy body fat in men is like 10 to 20% and women is 20 to 30%. It's more. Yes, it is more because female body requires fat and वो hormonal imbalances भी होते हैं. If I talk about a female body, there are regular hormonal changes every month during menstruation and a female body requires all these hormones every month. तो वो changes, ups and downs body में चलते रहते हैं. There are mood swings and things like that. तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें हैं जो आपकी वेट लॉस को अफेक्ट करती हैं। एंड ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो मेल्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मसल मास मेल बॉडी में एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी। और जहाँ पे मसल मास ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होगा। तो वो ज़्यादा खाना खाकर भी उसको इजीली बर्न कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स जो कम खाना खा के भी उसे इजीली बर्न नहीं कर पाती हैं। देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड थिंग्स लाइक दैट।
सो डेफिनेटली फ़र्क तो है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन लिटिल स्मॉल थिंग्स एंड देन यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ. Yeah, but this is like a natural obstacle which is there. It is. Which makes your weight loss journey a little slow naturally, even if you're trying or you're not trying. Yes, it is. Listen, metabolism की बात करिए, there are a lot of people, you know, on their journey, who are not even 30, उनका metabolism काफ़ी slow है, maybe naturally slow है, या over the time it has decreased. So, is there any way they can increase their metabolism? Yes. So basically, metabolism, what is metabolism? Metabolism is basically how fast your body is able to burn calories. तो आप जो भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी में कितना फास्ट या कितना स्लो बर्न हो रहा है, दैट एक्चुअली डिटरमाइंस योर मेटाबॉलिज्म. तो आप डेफिनेटली अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हो. अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा खा के भी बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दैट इज़ स्लीप. अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोते हो, या अगर आप बहुत लेट सो रहे हो रात को, दैट एक्चुअली मेक्स योर मेटाबॉलिज्म वेरी वेरी स्लो. जैसे मैंने बताया कि सर्काडियन रिदम होती है बॉडी की, एक अगर आप बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलते हो तो योर बॉडी वर्क्स वेरी वेल, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा. If your digestion is good, your metabolism is really fast, your body absorbs nutrition very fast and वो fat burn भी बहुत जल्दी करता है. So for having a good digestion, आपको पानी का intake proper रखना चाहिए. You should be having salad along with lunch as well as dinner. और आपको processed food अपने diet में, sugar अपने diet में कम रखना चाहिए, so that आपका digestion अच्छा हो. You shouldn't be having constipation, acidity and things like that. And one more important thing is that आप जितना अपने बॉडी को एक्टिव रखते हो थ्रू आउट द डे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उतना ही फास्ट होता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक्स दैट वर्क्स रियली वेल टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो ड्रिंक्स जो होती हैं दे एक्चुअली हेल्प्स योर डाइजेशन टू बी गुड. और अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, देन योर मेटाबॉलिज्म इज डेफिनेटली फास्टर. Right, doctor. As you talk about sugar, so there are, people avoiding sugar and they are using substitutes of it, like they're using sugar-free products or natural sweeteners like honey, jaggery. Someone also uses desi khand, they have their in kitchen. So is that okay to use these things, or they should completely cut off sugar? So basically, बहुत लोगों को लगता है कि जैगरी में न्यूट्रिशन होता है और वो वाइट शुगर से ज़्यादा हेल्दी है. लेकिन अगर आपको जैगरी का न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ट्रेसेस में होता है. तो आप अगर दिन में 1 या 2 टीस्पून जैगरी खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा उसका. तो फिर आप वाइट शुगर यूज़ करिए या जैगरी यूज़ करिए, कोई बहुत ज़्यादा इट डजंट मेक दैट मच डिफरेंस. और जहाँ तक बात है कैलोरीज़ की, वाइट शुगर और जैगरी दोनों की ही कैलोरीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. अगर वाइट शुगर की बात करें तो ग्लूकोज स्पाइक कम होता है वाइट शुगर में एज़ कम्पेयर टू जैगरी. जब आप कंज्यूम करते हो तो ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में. तो आई वुड से अगर आपको टेस्ट वाइट शुगर का अच्छा लगता है, आप वाइट शुगर लो, और अगर जैगरी का अच्छा लगता है आप जैगरी का लो, बिकॉज इट टेस्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वो ऐड नहीं कर रहा है आपके डाइट में. तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों चीज़ें मॉडरेशन में यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपका मेन गोल वेट लॉस है तो आपको सिमिलर कैलोरीज जैगरी में भी मिलेंगी, हनी में भी मिलेंगी. सो डॉक्टर, अगर एक मिस्टेक की बात करें, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक? जैसे आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ड्यूरिंग देयर वेट लॉस जर्नी, व्हिच मेक्स अनदर प्रॉब्लम फॉर द वेट लॉस, जो आपने बहुत सुनी है, काफ़ी कॉमन हो. सो बेसिकली चीट मील्स. जो लोग सोचते हैं कि पूरा हफ्ता अब हमने अच्छे से डाइट कर ली है, वीकेंड पे दे इंडल्ज अ लॉट इन चीट मील्स. तो उससे क्या होता है कि पूरी जो आपने कैलोरीज सेव करी हैं पूरे वीक में, वो सारी की सारी आपने वीकेंड पे वापस खा ली, और उसकी वजह से आपका जो वेट है ऑलमोस्ट वापस आ गया. एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि मैं डाइट पे भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव खा रही हूँ, कैलोरीज मैंने कम करी हुई हैं, बट देन स्टिल मैं बहुत ज़्यादा वेट लूज़ नहीं कर रही हूँ. तो वहाँ पे मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा और फिर मे बी यू विल लीव द डाइट एंड एवरीथिंग. सो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चीट मील्स जो हैं आपको नहीं खाने चाहिए जब आप डाइट पर हो. और आपको
even on weekends आप कोशिश करो कि you can have a bite or two, a very very small portion of whatever you like. Right. आप कोशिश करिए कि वो घर का बना हुआ हो, एंड कोशिश करिए कि वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिज़र्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ कैलोरीज. तो यू शुड बी रियली माइंडफुल कि आप चीट मील में भी क्या खा रहे हो और कितने पोर्शन में खा रहे हो. सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे, आप एक 2 घंटे जिम करके आएंगे, बहुत रनिंग कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा. घर आकर वो बहुत अनहेल्दी खा लेते हैं, 2 पराठे खा रहे हैं, उसके ऊपर बटर लगा कर खा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, या चिप्स खा रहे हैं, या ओवर ईटिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुबह हमने 1 घंटे 2 घंटे वर्कआउट कर लिया, उसके बाद अब हम जो मर्जी खा सकते हैं. तो ये गलती होती है. यहाँ पर आपको बहुत माइंडफुल रहना है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको फोकस करना है अपने डाइट के ऊपर. अगर आपका वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी आधे घंटे की भी है, दैट विल वर्क. लेकिन अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, दैट विल नॉट वर्क फॉर योर वेट लॉस. That's true. Also, doctor, there are a lot of people, who tend to lose weight slowly, but they lose the inches fast, if that makes sense. But I mean, I've seen a lot of people, जिनके numbers, weight number है वो धीरे धीरे कम होता है, but they're losing inches. Right. So is that fine? Yes. So basically, जो फैट होता है, बॉडी फैट, वो वो बहुत ज़्यादा, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वेट बहुत कम होता है. और जो मसल होती है उसका वेट ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है. सो व्हेन यू आर गेनिंग मसल, तो आप लीन दिखोगे. और अगर बॉडी फैट ज़्यादा है तो मे बी शायद आपका वेट उतना नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा यू लुक ब्रॉडर. तो अगर आपकी बॉडी से फैट जा रहा है और आप मसल गेन कर रहे हो, सो यू लुक लीनर बट यू माइट नॉट वे दैट मच. तो आपका वेट ज़्यादा दिखाएगा वेइंग स्केल पे, बट यू लुक लीन. और अगर बॉडी फैट ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि वेइंग स्केल पे वेट ड्रॉप करे, लेकिन आप उतने लीन नहीं दिखोगे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब डाइट कर रहे हो तो आपके डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू शुड बी लूजिंग योर मसल मास, और यू शुड बी हैविंग प्रोटीन इन ऑल ऑफ योर मील्स. थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आपको ज़रूर ऐड करना है. दैट विल मेक यू प्रिजर्व योर मसल एंड गेन मोर मसल. एंड ऑल्सो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी दिन में ज़रूर करनी है, विच विल ऑल्सो हेल्प यू गेन मसल एंड लूज फैट. तो आपको उस तरीके से अपनी डाइट करनी चाहिए, सो दैट यू लूज फैट एंड गेन मोर मसल. Also, this takes me to another question that, there are a lot of people who are fit, they have muscle mass, they're lean, but if they calculate their BMI, that is body mass index, so it comes as overweight. So why is that they're perfectly fit, they're healthy, they have the muscle mass, they're lean also, but तभी whenever they check their BMI, वो ज़्यादा ही दिखा रहा है. सो बेसिकली BMI ज़्यादा सिर्फ तभी होगा जब आप की बॉडी में जो है फैट ज़्यादा है. अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो BMI तभी ज़्यादा होगा. और अब अगर BMI आपका अनहेल्दी रेंज में है, सो दैट मीन्स कि आपको अपना फैट लॉस जो है वो करना चाहिए. यू नीड टू गेन मोर मसल. What is the ideal weight loss rate? मतलब how fast or slow it should be? जैसे किसी को 50 kgs कम करना है, किसी को फॉर एग्जाम्पल 20 kgs कम करना है, तो क्या एक परफेक्ट रेट है, कितना होना चाहिए वेट लॉस का रेट? सो बेसिकली वेट लॉस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज. जैसे आपने अभी यू आस्क्ड मी कि मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल्स का वेट लॉस जो है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. तो मेल्स जितना वेट लूज़ करेंगे ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स उतना वेट लूज़ करें. सेकेंडली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ओवरवेट यू आर. इफ़ यू आर अराउंड 50, 40, 30 kg ओवरवेट, तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर जस्ट नियर योर आइडियल बॉडी वेट. अगर आप सिर्फ 8 to 10 kgs ओवरवेट हो, तो अगर हम देखें तो मंथ में आपका वेट लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. व्हेन यू आर इन योर टीन एज और यूर इन योर 20s, तो यू लूज वेट फास्टर एज़ कम्पेयर टू इफ़ यूर इन योर 40s और 50s. उस वक्त पे वेट लॉस काफ़ी धीरे हो जाता है. एंड एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी स्ट्रक्चर. तो उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना वेट लॉस कर रहे हो. That's true. Also, doctor, now summertime is coming back again, when everybody wants to look fit. So any, that secret sauce tips, if there's any secret sauce, to look best for this summer?
So I would say कि summer is the best time to lose weight and Yeah. you can lose weight really fast. सबसे पहली चीज़ तो है you become really conscious क्योंकि winters में there are a lot of sweaters and jackets and you're all covered and body fat lot उतना of is not layers, visible. yeah. So you're not more conscious. और summers में you're more into t-shirts and kurtis and shorts and things like that. So body fat is visible. So you become little conscious कि नहीं I need to lose weight. So that's the most important thing. Secondly, the diet also changes. There's a lot of fluid intake summers में. There's a lot of liquid intake. You're having a lot of water. Winters में there's like you have more cravings. More cravings. You cannot just resist cravings in Yes. winters, even though you're full. That's also because you're not having sufficient water. So summers में when you're hydrated, आप पानी पी रहे हो naturally, तो you're little full. तो आपको भूख और cravings उतनी नहीं होंगी. हाँ. So make sure कि you're having a lot of lemon water, you're having a lot of detox water summers में. Things like that. और ऐसी चीज़ें भी आती हैं सीजन में जैसे which help you lose weight a lot. For example, watermelons हैं, all the kind of melons and cucumbers and things like that. So try to include a lot of fruits and vegetables, fresh fruits and vegetables, a lot of detox drinks, water, lemon water, things like that. और उससे जो है weight loss बहुत ज़्यादा easy हो जाता है. And days are little longer. तो आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी कर सकते हो. यू स्टे एनर्जेटिक. विंटर्स में डेज आर शॉर्टर और लेथार्जी आपको फील होता है. यू फील अ लॉट डिप्रेस्ड क्योंकि सनलाइट नहीं है. सो समर्स में देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड यू फील लाइवली. तो आप फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करो. स्वेटिंग ऑल डे. यस, स्वेटिंग ऑल डे. दैट्स ट्रू. और लोगों को बहुत भूख भी लगती है समर्स में. व्हेन आई फील लाइक कि भूख ही नहीं लग रही है समर्स में. कि विंटर्स इज प्रीटी द ऑपोजिट. यस. So also, before we end our today's episode, Dr. Shikha, any secret sauce for weight loss, if there's any, if you want to share? So I think I've shared a lot of secrets with you. I think all my secrets with you. So there's no secret to weight loss. It's just that you have to be very, very consistent. Yeah. If you are consistent and as I said that you have to be mentally very, very strong. You have to be very determined. I would say stay with people who make you motivated to lose weight. Yeah. Your circle, your friends should be that kind. वो आपको ये ना बोलें कि चलो चल के आज बाहर ये खाते हैं, बाहर वो खाते हैं. They should also be like you कि आपको they should be health centric. चलो healthy खाते हैं और then you stay motivated. अगर आपके friends ऐसे हैं जो हेल्दी हेल्थ के लिए फोकस्ड है तो आप भी वैसे ही रहोगे. सो मेक श्योर आपका सर्कल भी वैसा ही होना चाहिए. सो यू आर मेंटली डिटर्मिन्ड कि मुझे करना है एंड यू हैव टू स्टे अ लिटिल कंसिस्टेंट. और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो एंड डोंट जस्ट remove everything from your diet. You have to have everything, but you need to take care of your portion or bas, and then you lose weight. It's not that tough. Right. So any one myth you want to bust regarding weight loss? The one myth that I always speak about is लोगों को लगता है कि gym is for weight loss. I would say gym is not for weight loss. It's for your overall health. Okay. It's for your longevity, your mental health, your physical health. The thing that works for weight loss is your diet. So you have to focus on your diet if you want to lose weight. अगर आप बहुत अच्छे से 2 घंटे भी जिम करके आ रहे हो बट घर पे आके आप अनहेल्दी खा रहे हो, आप कभी वेट लॉस नहीं करेंगे. और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं, आपने सिर्फ आधा घंटा निकाला हुआ है फिजिकल एक्टिविटी के लिए और आप अपनी डाइट के ऊपर 100% फोकस कर रहे हो, तो आप अपना वेट भी लूज़ करेंगे और आप हेल्दी भी रहोगे. Well, that's right, Dr. Shikha. Thank you so much. I hope your tips will definitely help our audience. Yes. Thank you so much for being here today. Thank it was you so much. Lovely talking to you. Same here. Well, that's all for today. I'm sure these tips will definitely help you in your weight loss journey. That's all for today. Keep watching our show on FitTalk.